میں کلیسیا پاکستان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ ایک بار پھر سے ہم اس گواہی دینے میں ایک ساتھ شامل ہیں، یسوع جیسا کوئی نہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، جب ہم ان چیپٹرز کو، ان باب کو، ان پیغامات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہم ریورنڈ بلیک لیسٹرن کی گواہی کو بیان کر رہے ہیں۔ نو، ایسا مت سمجھیے، یہ سچ ہے، یہ گواہی میری گواہی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ گواہی آپ کی گواہی ہے۔ اور جب آپ ان پیغامات کو شیئر کریں گے، دوسروں کو بیان کریں گے، اس کا لنک دوسروں کو بھیجیں گے، آپ اپنے بہنوں بھائیوں کو دوسرے شہروں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس گواہی میں شامل ہیں۔ تو میں اس گواہی کا آغاز کرنے کو ہوں، یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب کے آج میں 6 باب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نجات دینے میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ زندگیوں کو بچانے جیسے عظیم مشن کی مثال ماضی میں ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی، جس کا آغاز یسوع سے شروع ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کسی طرح کی ناگہانی آفت آن پڑے تو زندگیوں کی حفاظت پر معمور ٹیمیں خطرناک حالات کے باوجود بھی آفت میں گرے لوگوں تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ ان کی تقرری اسی مقصد کی بنا پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ناگزیر حالات کا شکار زندگیوں کی جلد از جلد مدد کریں اور پیشہ ورانہ احتیاط کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی مکمل حفاظت کریں۔ کبھی کبھار تو زندگیوں کو بچانے والے آپریشن کی انجام دہی کے لیے لاکھوں روپے مختص کیے جاتے ہیں اور لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مشن لمبے عرصہ تک چلے، جب تک کہ زندگی بچانے کی آخری امید باقی ہو۔ یسوع آیا کہ ہمیں گناہ سے بچائے۔ جہاں اس بار زندگیوں کو بچانے والا آپریشن بڑا مہنگا تھا، اور یہ اپنے زمانہ کا سب سے زیادہ مہنگا آپریشن تھا، کہ ماضی میں بھی اس طور سے زندگیوں کو بچانے کی مثال نہیں ملتی۔ اس مہنگے ترین آپریشن کا خرچ لاکھوں روپوں میں نہیں، اور نہ ہی یہ ڈالرز اور اسٹرلنگ میں تھا، اور نہ ہی اس آپریشن کی قیمت کسی چیز کا متبادل تھا، بلکہ اس آپریشن کی قیمت یسوع کا اپنا خون اور زندگی کا دیا جانا تھا۔ اب چونکہ اس آپریشن کی قیمت سونا چاندی نہیں، اس لیے ہم قیمتاً اندازہ کرنے کی خیال یہاں سے اخذ کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ قیمت اس قدر زیادہ قرار پائی کہ دنیا بھر کے تمام انسان بھی اس قیمت کی ادائیگی کرنے کے قابل نہیں تھے کہ ان کی زندگی بچ جاتی، پر یسوع کے خون کی لامتناہی قیمت ہی سے ایسا ممکن ہوا۔ کیسی عظیم بات ہے کہ ایسی نجات کو خدا نے ہمارے لیے دنیا کی بنیاد سے پیشتر مقرر اور وقف کر دیا، کہ انسان کی تخلیق اور زمین کے وجود سے پیشتر خدا نے اپنے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہماری نجات کا منصوبہ ترتیب کیا۔ مکاشفہ 13 باب کی 8ویں اور 7ویں باب کی 8ویں آیت میں درج الفاظ پر غور کیجیے۔ برا جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، یس، بنائے عالم سے پیشتر، آدم اور حوا کی بغاوت سے پیشتر خدا نے ان کی نجات کے لیے ایک عظیم منصوبہ ترتیب دے رکھا تھا، اور خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے زندگی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ پورے پرانے عہد نامہ میں خون کا دریا ایسے بہتا نظر آتا ہے جیسے ڈھیروں جانوروں کو ذبح کیا ہو۔ جانوروں کی قربانی گناہوں کے زور کو موقوف نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ قربانیاں آنے والی کامل اور حقیقی قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھیں، اور واضح تھا کہ نہ تو انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی کسی قربانی سے ابدی نجات میں داخل ہو سکتا ہے، جب تک کہ کسی اور ذرائع سے مدد فراہم ہو کر انسان کی زندگی کا باعث نہ ہو۔ انسان کے لیے بچت کی کوئی راہ نہیں تھی، اور نہ ہی برا کی کامل قربانی کے بغیر انسان راست بازی کی وسیع شاہراہ کا مسافر ہو سکتا تھا۔ بائبل مقدس کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ صرف اور صرف ایک برا اس قربانی کو
गुजराने का एल था और उसका नाम यस्सु है। यीशु इसी मकसद को पूरा करने के लिए आया कि अपनी जिंदगी हमारी खातिर कुर्बान करे कि हमारे किरमजी गुनाहों का अबदी कफारा हो, ताकि खुदा हमारे आसमानी बाप तक रसाई के लिए आसमानी दरीचे हमारे लिए खुल जाए। यीशु आप ही हमारी अबदी निजात है। अगर यीशु हमारी ज़िंदगी में है तो मुकम्मल और कामिल निजात हमारी ज़िंदगी में है। यीशु ने उस मकसद को पूरा किया जिसकी अंजाम दही के लिए वो इस दुनिया में आया। सलीब पर यीशु ने बाआवाज़ बुलंद पुकार कर कहा, तमाम हुआ, जिसका मतलब ये है कि यीशु ने निजात के रास्ता को मुकम्मल तौर पर हमवार कर दिया है। उसने उस बड़े मंसूबा के मुताबिक उस काम की तकमील कर दी जिसे बरसों इंसान अपनी कुव्वत हिकमत बार बार कुर्बानी करने अपनी लियाकत से अंजाम देने की सी कोशिश में रहा। यीशु ने हमारे गुनाहों के बदले खुद कीमत चुकाई, हमारे गुनाहों की खातिर उसका खून बहाया गया। इस तरह सलीब पर हमारे माजी और हाल के गुनाह यीशु के साथ मसलूब होकर यीशु के ताकतवर खून से धुल गए। ये ऐसा ही था कि यीशु हमारी माफ़ी के लिए हमारी खातिर खुद गुनाह बन गया, जैसा कि दूसरा ग्रंथियों 5वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। बाइबल मुकद्दस ने हमें इस बात की गारंटी दी है, ज़मानत दी है कि यीशु के सलीबी मौत बर्दाश्त करने के वसीला हमारे गुनाह ढांप दिए गए और ईमान के वसीले हमने उसकी रास्तबाजी को पा लिया है। ईमान के वसीले कबूलियत में शामिल होकर हम अपने गुनाहों के बोझ और गुनाहगार होने के इल्ज़ाम से बरी हो गए हैं। इस नतीजा में जब खुदा हम पर निगाह करता है तो खुदा को हम में यीशु की रास्तबाजी नजर आती है। यीशु ने खुद मुजरिम ठहरकर हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया और उसकी सलीबी मौत के वसीला से आसमानी बाप तक हमारी रसाई और आसमानी बाप से हमारा दोबारा मेल मिलाप हो गया। उसके खून ने हमें कामिल इत्मीनान बख्शा। इस तरह अदन से शुरू होने वाली जंग का इख्तिताम हुआ और फतह बर्रे कदूस हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु के नाम हुई। इस सबब से सलीबी सच्चाई के वसीला हम खुदा बाप के ख़ानदान के फ़र्द बन गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि खुदा बाप की हजूरी में मुकद्दसीन के दर्जा तक पहुँचे। अब वो सब जिसकी हमें ज़रूरत थी खुदा यीशु में हमारी ज़िंदगी की बरकत है और वसीला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। निजात की हकानियत और सदाकत और इनफरादियत इन अल्फाज मसीह में पिन्हा है। ये अल्फाज पौलुस रसूल ने कई बार अपने खतूत में इस्तेमाल किए हैं। ये अल्फाज मसीह में हमारे मकाम और मसीह के साथ हमारे तल्लुक़ का तयन करते हैं। ये मसीह में नहायत करीबी रफ़ाकत का इजहार है। हालांकि अब भी हम इंसान ही हैं, लेकिन सलीबी मौत और कब्र पर फतह पाने की बदौलत अज़ाफ़ा ये हुआ कि ज़िंदा मसीह अब हम में रहता है और हमारा रूहानी पता और पहचान मसीह में बन गई है। खुदा ने हमें वैसे ही कबूल किया जैसे अपने बेटे यीशु को। खुदा ने हमसे वैसी मोहब्बत रखी जैसी अपने इकलौते बेटे यीशु के साथ, और यही वजह है कि अब से हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार जिंदा मसीह है। बड़ी खुशी की खबर, ये खबर हमें आसूदा करती है कि यीशु ने अपनी खिदमत और इस मकसद को पूरा किया जिसके लिए वो भेजा गया था। अपने जात का काम मुकम्मल है जो हमारे लिए एक कीमती बल्कि बेशकीमत तोहफा है। सिर्फ हमें यीशु की उस अदायगी को कबूल करना है और मसीही कलीसियाओं में गवाही देते रहना है। इब्रानियों के खत के आगाज में बड़ी सफाई से बयान किया गया है कि यीशु खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, इसलिए कि निजात का काम मुकम्मल हो चुका है। इब्रानियों के खत में हम कई बार ये जिक्र पढ़ते हैं कि एक ही बार सब के लिए, जिसका मतलब ये है कि गुनाहों की खातिर कोई और कुर्बानी कभी नहीं गुजरानी जाएगी और ना ही किसी और सलीब या मसलूबियत की ज़रूरत होगी, चूँकि एक दफ़ा की कुर्बानी हमेशा के लिए कामिल कुर्बानी पाई गई है। आपको याद है कि पुराने अहदनामा में कुर्बानी का
मुसलसल कायम रहा कि काहिन एक हफ्ता के बाद लाजिम कुर्बानी गुजरानते थे और फिर साल ब साल, इसलिए कि उनकी कुर्बानी मुख्तलिफ किस्म की होती और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कुर्बानियाँ गुजरानी जाती। मगर यस्सु में हमारी फसा और कुर्बानी हतमी हो गई। यस्सु ना तो सलीब पर लटका रहा और ना ही फिर दोबारा सलीब पर चढ़ाया जाएगा, इसलिए कि कफारा का काम तकमील को पहुंचा है। अजीम कलीसिया इस सच्चाई को अपने दिलों पर लिख ले कि जब यस्सु आसमान पर गए तो यस्सु अपने साथ जानवरों की कुर्बानी के खून का नजराना लेकर नहीं गए। इब्रानियों 9 बाब उसकी 12वीं आयत में पौलुस रसूल बयान करते हैं कि और बर्रों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। इसलिए हमारी गवाही यही है कि आज के रोज़ हमारा शफाअत करने वाला और हमारे निजात बनने वाला एक ही है। सवाल ये बिल्कुल नहीं कि हम कौन थे, हम कौन हैं और ये कि हमने कौन कौन से गुनाह किए, इसलिए कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता और हमारी दायमी निजात के लिए काफ़ी है। अब जबकि खुदा बाप से हमारी गहरी रफाकत हो गई तो फिर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाएं, बल्कि कायम रहें, इसलिए कि हमें मिलने वाली खुशखबरी ज़्यादा कुव्वत वाली है। दुनिया भर के मज़ाहिब बुनियादी तौर पर तालीम देते हैं कि शायद इंसान की निजात का दारोमदार जंग जदल पर मबनी और जीत की कोशिश में है। हैरान कुन हद तक उनका पैगाम ऐसा ही मालूम होता है कि ये खुद से करो या अपनी मदद आप निजात हासिल करो, लेकिन यीशु से मिलने वाली कुदरत भरी निजात पहले ही मुकम्मल हो चुकी है कि यीशु की निजात बख्श कुदरत की इस अजीम कुर्बानी में ना तो किसी तरह की कमी रह गई है और ना ही कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत बाकी है। आप मसीह की रफाकत में नए हों या कई बरसों से मसीह यीशु की पैरवी करने वाले छोटे लड़के हों या लड़की, शायद कि आप उदेर उम्र मर्द हों या औरत या मजबूत जवान हों या कि बिस्तरे मर्द पर हों, किसी भी खित्ता, किसी भी रंग और नस्ल से हमारा तल्लुक हो, हमारे लिए सिर्फ एक बात उत्तम और ज़िंदगी में यकीनी और फतहमंद उम्मीद दिलाती है कि दुनिया की बुनियाद से पेशतर ही हमारे लिए बर्रा का खून मख्तस कर दिया गया कि आप मुकम्मल निजात में दाखिल होकर आसमानी बाप की हजूरी का मकदूर हासिल करें। बतौर कलीसिया हमारी जिम्मेदारी है कि हम गवाही के ज़रिए दावत दें कि यीशु के पास आओ, वो राह और हक और ज़िंदगी देता है और कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। पौलुस की तरह हम मसीह को पेश करें कि मसीह के अलावा कोई और ऐसा नहीं जो हमारी खातिर हुआ और जिसने हमारे गुनाहों की पूरी कीमत अदा की हो। लिहाजा हम यही गवाही देंगे कि यीशु पर निगाह करें और ज़िंदगी पाएं। बाइबल मुकद्दस का बयान ये है कि फजल और सच्चाई यीशु मसीह के वसीला से आए कि हमारी निजात खुदावंद यीशु मसीह के फजल की बदौलत है जिसकी तकसीम सलीब पर से की गई। चूँकि हम शख्सी तौर पर इस लायक ही नहीं थे कि यीशु हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दे और हमें ज़िंदगी बख्शे कि हम बचाए जाएं, लिहाजा आप यीशु के सलीबी कफारों को कबूल करके हमें यीशु की तलीमात को गवाही के वसीला दुनिया में आम करना है। माइकल हॉर्टन लिखते हैं, अंजील जो कि मसीह में गुनहगारों के लिए खुदा की जानिब से दायमी खुशखबरी है, इस खुशखबरी का मतलब कतई ये नहीं कि ये खुदा की तरफ से माफ़ी या मोहब्बत का अखीर है। अंजील ना तो कोई सतही ख्याल है और ना ही ये कोई ऐसी बात जिसे दीगर बातों में अव्वलियत और दीगर बातों पर फोकियत है, बल्कि खुशखबरी ऐसा समुंदर है जिसमें हम नहाते, एक ऐसी साफ हवा जिसमें हम पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए सांस लेते और अपनी ऐसी शनाख्त पाते हैं जो बयान करती है कि हम हैं क्या। अंजील मुकद्दस का ये गीत एक सच्चे ईमान की हकीकी गवाही देता है। कौन मेरे गुनाह धो सकता है? कोई और नहीं बस यीशु मसीह। कौन मुझे पाक कर सकता है? कोई और नहीं बस यीशु मसीह।
यही मेरी उम्मीद और इत्मीनान, कोई और नहीं बस यीशु मसीह। यही मेरी रास्तबाजी और पहचान, कोई और नहीं बस यीशु मसीह। अजीज़ कलीसियाई बहनों भाइयों, आप उर्दू सुनने बोलने वाले हैं, आप समझने वाले हैं, आप पाकिस्तान में हैं या आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, मैं कलीसिया पाकिस्तान की जानिब से, मैं अपने चर्च की जानिब से, मैं पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क टीम की जानिब से मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हुए आपको दावत देता हूँ कि इस पैगाम को जो बड़ी सादगी से आपके सामने पेश किया गया है, आप कुछ दलीली करके, जुर्रत करके आप इस पैगाम को, इस गवाही को बयान करने के लिए कि यीशु जैसा कोई नहीं, आप हमारा साथ दें, इस पैगाम को दूसरों तक शेयर करें ताकि आप इस मसीह के जिंदा हुआ ठहरें। हम शख्सी तौर पर मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और आपकी सारी आपके खतूत हमें मिलते हैं, आपकी ईमेल्स हमें मिलती हैं, ख़ासतौर पर आपके कमेंट्स हमें आते हैं। व्हाट्सएप नंबर से आप वाकिफ़ हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इन बुक्स पे लिखा हुआ है। और न सिर्फ ये बल्कि मैं आपके सामने दोहराई देता हूँ 0333207007। जब आप इस पर रब्ता करते हैं तो आपकी जानिब से मौसूल होने वाली पेश बहा दुआएँ हमारे लिए रहनुमाई का तयन करती हैं। May the Lord bless you.